Welcome to all of you on Grow Strong, dear students and other fellow listeners. Hope that you all are feeling well. Let us have a debate on entitled theme, Levels of Intervention, with special reference to preventive intervention. Dear students, intervention is derived from Latin word intervere, which means to stop or interrupt. Question arises, what we have to stop or interrupt? Dear students, we have to stop an individual from both disease and disability. हमें एक इंडिविजुअल को बचाना है डिजीज से भी और डिसेबिलिटी से भी. This is known as intervention. Dear students, there are three types of interventions. Number one, preventive intervention. Number second, remedial intervention. And number third, compensatory intervention. In today's lecture, we will purely discuss preventive intervention. Preventive intervention is that intervention जो डिजीज और डिसेबिलिटी से पहले दिया जाता है, यानी कि इंजरी से पहले जो इंटरवेंशन दिया जाता है, that is known as preventive intervention. Preventive intervention has having the scope in various fields. When we look through the prism of medicine, मेडिसिन में प्रिवेंटिव इंटरवेंशन दिया जाता है, साइकोलॉजी में प्रिवेंटिव इंटरवेंशन दिया जाता है, नर्सिंग में प्रिवेंटिव इंटरवेंशन दिया जाता है. Apart from these fields, preventive intervention has also greater scope in the field of special education and inclusive education. Dear students, there are three types of preventive interventions. Number one, primary intervention. Number second, secondary intervention. And number third, tertiary intervention. Now we will discuss one by one all types of interventions. I mean to say you preventive interventions. Primary preventive intervention. ये वो इंटरवेंशन है जो बेसिकली इनिशियल स्टेज पे दिया जाता है सो दैट वी विल मिनिमाइज और एलिमिनेट द रिस्क फैक्टर्स रिलेटेड टू डिजीज एंड डिसेबिलिटी. द मेन पर्पस ऑफ प्राइमरी प्रिवेंटिव इंटरवेंशन इज टू प्रमोट द ओवरऑल वेल-बीइंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल. ओवरऑल वेल-बीइंगनेस मीन्स physical well-beingness of an individual, intellectual well-beingness of an individual, emotional and social well-beingness of an individual. Overall well-beingness को maintain रखने के लिए primary preventive intervention दिया जाता है. The following are the primary preventive measures. अब हम discuss करेंगे one by one. Primary preventive measures. Number one, avoid toxic substances. We should avoid the toxic substances. क्योंकि toxic substances are harmful substances which are directly linked with both disease and disability. Toxic substances like lead poisoning, mercury poisoning, methanol, pesticides and other इंडस्ट्रियल केमिकल्स. जो इंडस्ट्री में कोई भी केमिकल यूज किया जाता है उनके इफेक्ट्स होते हैं. दे गिव्स बर्थ टू बोथ डिजीज एंड डिसेबिलिटी. ड्यू टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेस देयर इज ए चांस कि एक इंडिविजुअल को कोई भी डिसेबिलिटी लग सकती है, सच एज मेंटल रिटार्डेशन, learning disabilities, locomotor disabilities, hearing impairment,
by and large visual impairment. Number second, safety measures. Use of seat belts and bike helmets will protect us from disabilities like locomotor, visual, hearing and speech. हमें इंडिविजुअल्स को, I mean to say you, लोगों को अवेयरनेस देनी है how it is important to take a safety measures. अगर हमें गाड़ी ड्राइव करनी है, हर एक व्यक्ति को चाहिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल करे. अगर कोई मोटर बाइसाइकिल राइड करता है तो जरूरी है हेलमेट पहनना, so that we will protect ourselves from the disabilities, particularly visual impairment, hearing impairment, locomotor disability, by and large speech impairment. जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे ब्रेन में वीडियोट्री सिस्टम होता है. अगर एक्सीडेंट की वजह से हमारे ब्रेन का वीडियोट्री सिस्टम डैमेज हो गया, डेफिनेटली द इंडिविजुअल विल लॉस द विजुअल कैपेसिटी, और वो इंडिविजुअल विजुअली इंपेयर्ड बन सकता है. इसी तरह से अगर एक्सीडेंट की वजह से ऑडिटरी सिस्टम हमारे ब्रेन में डैमेज हो गया, इंडिविजुअल विल लॉस हियरिंग एबिलिटी, तो वो हियरिंग इंपेयर्ड बन जाएगा. एंड सेम वे विजुअल इंपेयरमेंट एंड हियरिंग इंपेयरमेंट. अगर ब्रेन का पार्ट डैमेज हो गया, इंडिविजुअल विल आल्सो बिकम स्पीच इंपेयर्ड, वो बात नहीं कर पाएगा. एंड प्रोमिनेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू द एक्सीडेंट, that is locomotor disability. Due to the accident, individual has chance to lose the any limb, either upper limbs or lower limbs. इसीलिए safety measures जरूरी है. Healthy and safe habits. Take balanced diet, exercise regularly, normal sleep, and maintaining hygiene that keep us safe from disease and disabilities. Dear students, as we know that balanced diet is that diet which contains all the essential nutrients. और अगर deficiency of nutrients हमारी बॉडी में पैदा हो गए, it will directly result in any disability. जैसे कि हम सब जानते हैं deficiency of vitamin A leads the visual impairment. और इसीलिए बैलेंस्ड डाइट जरूरी है एक इंडिविजुअल के लिए, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले डिजीज और डिसेबिलिटी से. इसी तरह से रेगुलर एक्सरसाइजिंग, क्योंकि हमारी बॉडी फिट रहती है अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे. सिंपली हम कह सकते हैं वर्क कल्चर के साथ एसोसिएट रहेंगे. नॉर्मल स्लीपिंग साइकिल, नींद जरूरी है हमारी बॉडी के लिए. एंड साइंटिफिकली इट हैज प्रूव्ड एक इंडिविजुअल नॉर्मली 7 से लेके 8 आवर्स तक सोना चाहिए, क्योंकि ये हमें डिजीज से भी बचाता है और डिसेबिलिटी से भी बचाता है. मेंटेनिंग ऑफ एन हाइजीन. हाइजीन जो है इट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एक इंडिविजुअल जिंदा नहीं रह सकता है हाइजीन के बगैर, बिकॉज विदाउट द हाइजीन, आई मीन टू से यू विदाउट मेंटेनिंग द हाइजीन, चाहे नेल हाइजीन है, डेंटल हाइजीन है या ओवरऑल बॉडीली हाइजीन है, यह हमें बचाती है हार्मफुल डिजीज से, ड्रेडफुल डिजीज से. इसीलिए जरूरी है हेल्थी एंड सेफ हैबिट्स. जब तक कि हम हेल्थी और सेफ हैबिट्स फॉलो नहीं करेंगे या अडॉप्ट नहीं करेंगे, देयर इज चांस इधर हम पे एलिमेंट का असर होगा या हम डिसेबिलिटी के शिकार होंगे. इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन. इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन भी जरूरी है, so that we will protect ourselves from dreadful or harmful diseases like cholera,
hepatitis B, influenza, malaria, polio, blindness, and other neurological disorders. Precautionary measures. Take precautionary measures against sexually transmitted disease like HIV. हमें लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है. It is the responsibility of government officials, semi-government officials, by and large teachers, to provide the information, both learners and general public, about the dreadful diseases like HIV. HIV means human amino deficiency virus, जो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स से होती है. इसके रिलेटेड अवेयरनेस देनी है, किस तरह से हम एड्स से बच सकते हैं. सो वी कैन से दैट दिस इज प्रिवेंटिव प्राइमरी इंटरवेंशन. Avoid drug addiction. Avoid drug addiction such as alcohol, opioids, marijuana, tobacco. जैसे कि हम सब जानते हैं, there is one syndrome that is known as fatal tobacco syndrome. And this fatal tobacco syndrome directly results both disease and disability. तो इसीलिए ड्रग एडिक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है. जैसे कि हम सब जानते हैं, एट ग्लोबल लेवल ड्रग एडिक्शन इज द प्रॉब्लम. इट इज ग्लोबल प्रॉब्लम राइट नाउ, फेसिंग इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड. और ड्रग एडिक्शन की वजह से वो डिजीज और डिसेबिलिटी बच्चों में पाई जाती है. स्पेशली जब एक मदर ड्रग एडिक्टिव होती है, अल्कोहलिस्टिक होती है, जो बच्चा उसकी कोख में होता है, द चाइल्ड हैज मैक्सिमम चांस to get birth as a disabled child. इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान एक वुमेन को अवॉइड करना चाहिए ड्रग एडिक्शन, चाहे वो टेबलेट की सूरत में लेती है, अल्कोहल की सूरत में लेती है, या और कोई ड्रग लेती है. प्रॉपर बर्थ स्पेसिंग. डियर स्टूडेंट्स, वुमेन्स को स्पेशली इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट द प्रॉपर बर्थ स्पेसिंग. Proper birth spacing simply means gap between first child and the second child. जब हम मेडिकल प्रिज्म से देखते हैं तो पहले और सेकंड चाइल्ड में ऑलमोस्टली 18 मंथ्स की गैप होनी चाहिए, क्योंकि 18 मंथ्स की गैप हेल्थी गैप मानी जाती है. अगर कोई वुमेन 18 मंथ से पहले दूसरा बच्चा रखना चाहती है, कीपिंग इन व्यू द मेडिसिन, तो वुमेन के लिए भी रिस्क फैक्टर है और बेबी के लिए भी रिस्क फैक्टर है. दैट वुमेन कैन नॉट गिव बर्थ टू द हेल्थी चाइल्ड. इसीलिए प्रिवेंटिव मेजर है, देयर मस्ट एंड ऑट टू बी द प्रॉपर बर्थ स्पेसिंग इन बिटवीन द फर्स्ट चाइल्ड एंड सेकंड चाइल्ड. सीकिंग जेनेटिक काउंसलिंग. हमें जेनेटिक काउंसलिंग देनी है, स्पेशली जो genetic counselors है, they can provide the genetic counseling. As we know that genetics simply means transmission of characteristics from parents to the offsprings. और पेरेंट्स को कंसल्ट करना चाहिए प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स रिलेटेड टू द मैरिज और फैमिली हिस्ट्री, ताकि उनके बच्चे बच जाएंगे both disease and disabilities. Prenatal testing. Prenatal testing is basically medical testing which is given to the woman especially during pregnancy. As we know that there are two periods. एक पीरियड को prenatal period कहते हैं and second period is known as postnatal period. Prenatal period वो पीरियड होता है when child remains 9 months इन द वोम ऑफ द मदर. जब माँ की कोख में 9 महीने बच्चा रहता है, उस पीरियड को प्रीनेटल पीरियड कहते हैं. इसीलिए ज़रूरी है एक प्रेग्नेंट वुमेन को वो प्रीनेटल पीरियड के दौरान मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाए, ऑब्जर्वेशन के लिए जाए, ताकि वो जान सके उसका बच्चा हेल्थी है कि नहीं, उसकी ग्रोथ नॉर्मल हो रही है कि नहीं.
इसीलिए प्रीनेटल टेस्टिंग जरूरी है। और प्रीनेटल पीरियड के बाद दूसरा पीरियड स्टार्ट हो जाता है, दैट स्टार्ट्स आफ्टर द बर्थ, दैट इज नोन एज पोस्टनेटल पीरियड। नंबर सेकंड, सेकेंडरी प्रिवेंशन। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी प्रिवेंशन उस वक्त दिया जाता है जब कोई डिजीज एक इंडिविजुअल पे अटैक करती है, या एक इंडिविजुअल इंजरी का शिकार होता है, या किसी इंडिविजुअल में डिजीज के सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो उस वक्त सेकेंडरी इंटरवेंशन दिया जाता है। इसीलिए जरूरी है रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट्स, ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन के लिए जाना। आई मीन टू से यू मेडिकल ऑब्जर्वेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एक इंडिविजुअल को जाना पड़ता है ताकि वो डिसेबिलिटी से बच जाए या उसकी जान नहीं जा सकती है। फॉर इंस्टेंस, किसी वुमेन में सिम्टम्स है रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के चांसेस है, तो सेकेंडरी इंटरवेंशन के लिए जाना पड़ता है। इसी तरह से आई, बोन और ईयर इन्फेक्शन, अगर किसी बच्चे में आई इन्फेक्शन पाया जाता है या उसके सिम्टम्स है, तो उस वक्त एक बच्चे को मेडिकल इंस्पेक्शन के लिए लेना है, सो दैट वी कैन कंट्रोल द आई इन्फेक्शन। एंड लाइकवाइज द ब्रेस्ट कैंसर, आई इन्फेक्शन, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनमें बोन इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं, या बोन इन्फेक्शन पाया जाता है, या ईयर इन्फेक्शन पाया जाता है। ऑर्थोपेडिक इंपेयरमेंट से बचने के लिए या हियरिंग लॉस से बचने के लिए वी हैव टू गो फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशंस। सो दिस टाइप ऑफ इंटरवेंशन इज नोन एज सेकेंडरी इंटरवेंशन, या हम कह सकते हैं सेकेंडरी प्रिवेंटिव इंटरवेंशन। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, सेकेंडरी प्रिवेंटिव इंटरवेंशन में रेगुलर एक्सरसाइजेस भी आते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल या व्यक्ति को बोन्स एंड जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, मसल इशू है, तो उससे निपटने के लिए, उसे एलिमिनेट करने के लिए इंडिविजुअल हैज टू गो फॉर द रेगुलर एक्सरसाइज। इसीलिए कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट्स को फॉलो करना पड़ता है, वो उन्हें टिप्स दे सके कि किस तरह से एक्सरसाइज की जाती है रेगुलरली, सो दैट जो उसे बोन्स एंड जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है या मसल के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उससे वो बच सके। वी कैन ऑल्सो सेव आवर सेल्व्स फ्रॉम बोथ हार्ट अटैक्स एंड हार्ट स्ट्रोक्स। हार्ट स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। नंबर थर्ड, टर्शियरी प्रिवेंशन। डियर स्टूडेंट्स, टर्शियरी प्रिवेंशन वो प्रिवेंशन होता है या इंटरवेंशन होता है जो सोसाइटल लेवल पे दिया जाता है। इट मीन्स इट इज गिवन एट लार्जर लेवल, जहां पर कंसर्न्ड ऑफिशियल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अवेयरनेस प्रोवाइड कर ले टू द पेरेंट्स। अगर कोई पेरेंट या पेरेंट्स बच्चे को नेग्लेक्ट करते हैं, चाइल्ड इज विक्टिम ऑफ चाइल्ड अब्यूज और नेग्लिजेंस, उसे वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जो गैप बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान रहती है, इट गिव्स बर्थ टू द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जैसे कि हम सब जानते हैं, देयर इज वन कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, या हम कह सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। दोज आर कॉल्ड द डेलिकेंट्स। डेलिकेंट्स आर दोज चिल्ड्रन जिनमें एंटी सोशल बिहेवियर पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लूटिंग, थेफ्टिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज उन बच्चों में पाई जाती है। और डेलिकेंसी का मेजर कॉज नेग्लिजेंस है। जब बच्चे पेरेंट से रिजेक्ट होते हैं, आई मीन टू से यू पेरेंट्स बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड बाय एंड लार्ज दे आर कॉमनली विक्टिम ऑफ मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इनमें कॉमनली पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कंसर्न्ड प्रोफेशनल्स स्पेशली द डॉक्टर्स, उन्हें पब्लिक को अवेयरनेस देनी है रिलेटेड टू द वेरियस ड्रेडफुल डिजीजेस लाइक HIV, कॉलरा, हेपेटाइटिस B, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, पोलियो, so on and so forth.
अगर हमें इन ड्रेडफुल डिजीज और डिसेबिलिटीज से बचना है तो ज़रूरी है लार्जर लेवल पे, सोशल लेवल पे कॉमन पब्लिक को इसके रिलेटेड अवेयरनेस होनी चाहिए। और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एनजीओज की जिम्मेदारी है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सके ताकि एक कंप्लीट अवेयरनेस जनरल मासेस को मिले related to the various diseases and disabilities या socio-psychological problems which are largely confronted by the people. And apart from it, अगर सोसाइटी लेवल पे पुअर्टी ज़्यादा है और पुअर्टी को भी कंट्रोल करना है, I mean to say you reduce or eliminate करना है, because researchically it has proved poverty is directly related to the diseases, psychological problems, by and large disabilities. नटशल में हम कह सकते हैं प्रिवेंटिव इंटरवेंशन के 3 टाइप्स है, प्राइमरी इंटरवेंशन, सेकेंडरी इंटरवेंशन एंड टर्शियरी इंटरवेंशन. This was all about the today's lecture. In next lecture, we will discuss another important intervention, that is remedial intervention. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.